آج ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. آج ایڈوینٹ سنڈے ہے. دنیا بھر میں اس کو منایا جاتا ہے اور میں کچھ بتانا چاہتی ہوں ایڈوینٹ سنڈے کیوں منایا جاتا ہے. اس لیے آپ اکثر دیکھتے ہیں میڈیکل ٹرمز میں وینٹیلیشن پر یا وینٹیلیٹر پہ ہے. وینٹیلیٹر ایسی بات ہے جس میں سانس، دل، پورا جسم جو ہے اس کو کیا ملتی ہے؟ تقویت ملتی جاتی ہے. اگر سانس نہیں تو سانس ملتا ہے، اگر دل حرکت نہیں کر رہا تو وہ دل حرکت کرتا ہے. ایون کسی ڈیڈ بندے کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دو تو اس کا سب کچھ شو ہوتا ہے کہ ہاں. اسی طرح جو ہمارا یہ وینٹ پر جانا ہے، ایڈوینٹ میننگز یہ ہے وہ سیزن شروع ہو گیا ہے جو ہمیں زندگی بخشنے والا تھا وہ آنے والا ہے. آمین آمین. تالیاں نہیں بجانی چاہیے. ایڈوینٹ سنڈے. سو آج آپ کو ایڈوینٹ سنڈے مبارک ہو. خوش ہونا چاہیے، ہمارا سیزن شروع ہو گیا ہے. پوری دنیا میں یہ دن منایا جا رہا ہے. آمین. کیونکہ ہمارا خدا 25 دسمبر کو، بے شک یہ ٹائم کئی لوگ کہتے ہیں ڈیٹ ٹائم یہ غلط ہے، لیکن وہ آیا تو ہے نا. آسمان گواہ ہے کہ فرشتے آئے. وہ کلچرل لوگ جو چرواہے تھے وہ کہتے ہیں خداوند آیا، فرشتے آئے، پیغام دیا. آمین. سو آپ سب کو ایڈوانس کرسمس بھی مبارک ہو. آمین. یہ کرسمس ہم کبھی نہیں بھول سکتے. ایک دوسرے کو آپ کہہ سکتے ہیں کرسمس مبارک ہو، کرسمس مبارک ہو، اور زوردار تالیاں خداوند کے جلال کے لیے. آمین. آج تو ہمیں گانا چاہیے تھا کچھ کرسمس کے تعلق سے. کیوں بھائی صالح؟ ہے نا؟ ہم ایک آیت گائیں گے اور وہ ہے سب اکثر گاتے ہیں وہ گیت. آہا یسوع آیا کہ وہ بیت لحم میں کون سا گیت ہے؟ ایسا بھی ایماندار. پلیز کھڑے ہو جائیں سب تالیاں بجاتے ہوئے. ایسا بھی ایماندار ہو کے آؤ چلے ہم سب بیت لحم. آؤ چلے ہم جہاں روٹی ہے، جہاں گوشت ہے، جہاں زندگی کی ضرورت ہمیں ملنے والی ہے. آمین. جہاں ہمارا مسیح یسوع پیدا ہونے والا ہے. آج سے 2000 سال پہلے وہ پیدا ہوا اور وہ دنیا میں آیا. 33.5 برس رہا اور دنیا کو زندگی دے کر گیا. ہتھوں کو آنکھیں، لنگڑوں کو ٹانگیں، پش مردوں کو زندگی دے گیا اور ہمیں نجات بھی دے گیا کیونکہ ہم گناہ گار تھے. ہمارے گناہ اس نے اٹھا لیے. آمین آمین. ایسا ایماندار Hallelujah.
دلوں کو کھول لیں اور کانوں کو شاگردوں کی طرح بنا لیں تو ہم بیت الحم کی طرف روانہ ہو جائیں۔ خداوندوں کے خدا تیرا شکر کرتے ہیں تیرے رحم اور فضل کے لیے جو تو نے ہم پر کیا ہے۔ ہم زمین والوں کے لیے کوئی بھی خداوند نہ کوئی رحم کرنے والا تھا نہ کوئی ترس کھانے والا تھا۔ ہمارے گناہ درجہ بدرجہ بڑھ رہے تھے، آدم اور ایو سے، نوح سے، ابراہیم سے، یعقوب سے، جنریشن وائز، لیکن کسی نبی نے، کسی کاہن نے کوئی فدیہ نہیں دیا۔ ہاں، صرف ایک خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے آئے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم تیری شکر گزار ہیں خداوند، اور آج ہم مل کر خداوند خدا وہ تاریخ جس میں خداوند اسم نبی سے ہوئی اور تیرا نام آ گیا، اور خداوند خدا تو نے اپنے نام سے اپنے کام کو ظاہر کیا۔ یسوع نام بچانے والا نام، تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف ہو۔ آج اسی نام میں ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اے خداوند سب کو برکت دے دے، دلوں کو آراستہ کر دے، کانوں کو کھول دے، شاگردوں جیسے بنا دے۔ اور اے خداوند خدا اپنے خادم کے لیے جس کو تو نے آج اپنی آواز دے کر تیار کیا ہے، اپنا کلام دے کر آراستہ کیا ہے، جب وہ بولے تو اے خداوندوں کے خدا ہماری یہ تحریر ہمیں بدل دے۔ تیرا شکر ہو خداوند خدا، یہ کلام بند بند اور گودے گودے میں سے ہو کر گزر جائے، خیالوں کو بدل دے اور ارادوں کو بدل دے۔ ہم اس سے ہر ایک کو اگر خداوند شفا چاہیے تو کلام جب نازل ہوتا ہے تو شفا ملتی ہے۔ سو خداوند ایک ایک جوان، بزرگ، بیٹی، بیٹا آج خداوند اس کلام سے تبدیل ہو جائے۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو خداوند خدا۔ آج گلوبل ڈے منایا جا رہا ہے، یہاں بھی نہیں آسمان پر بھی خداوند خدا تو یاد رکھتا ہے۔ تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف ہو۔ پرستش اے خداوند خدا تیری کوائر کے لیے، ہمیں جو غلطیاں ہیں، ہمیں جو کوتاہیاں ہیں، اے خداوند تو ہی دور کرنے والا ہے۔ تیرے گیت، تیری راگنیاں ہم خداوند تیرے لائق بجا سکیں، گا سکیں، تاکہ تجھے پسند ہو اور تیرا رلقس منڈلاتا رہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، ایک دفعہ پھر تیرے خادم کے لیے اے خداوند خدا تیرے مقدس اور پیارے ہاتھ مانگ لیتے ہیں۔ تیرا شکر ہو، مسیح یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیا، پا لیا، آمین۔ آئے زوردار تعلیموں سے خداوند کے زندہ کلام کو اور خدا کے خادم کو برکت کریں۔ Praise the Lord. خدا کی ستائش ہو، اس کی حمد ہو جو بڑا ہے اور جس کی شفقت ابدی اور وفاداری پشت رہتی ہے، آمین۔ کرسمس سیزن سٹارٹ ہے، ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں، نجات دہندہ کے لیے اس کا شکر کرتے ہیں۔ آئیے زوردار تالیاں بجا کر اس سیزن کا ویلکم کریں۔ شکر ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے،
हमें कुव्वत और जोर देता है। इस हफ्ते में हमारे बहन सिस्टर यास्मीन की बर्थडे और सुलेमान की बर्थडे थी। हम इनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। इस दौरान में इस हफ्ते में और किसकी बर्थडे थी? उससे पहले थी। गॉड ब्लेस यू बर्थडे। और आज इस सुबह में हम खुदावन की प्रस्तुति को उठाएंगे। और लास्ट टाइम मैंने इस बात का जिक्र भी किया था कि जो वर्शिपर हैं वो प्रिपेयर हो और एक एक दो दो मिसरे हम खुदावन की प्रस्तुति में गाएंगे। और ये ड्यूरिंग जो है वो मैसेज ऐसा होगा। और हमारा जो सब्जेक्ट आजकल चल रहा है वो क्या है? रिबिल्डिंग द टैबरनेकल ऑफ डेविड। दाऊद के खेमे की तमीरे को दोबारा से खड़ा करूंगा। और लास्ट टाइम मैंने बताया कि खुदा सयून में रहता है और उसने क्यों सियून को चुना है। और ये पिछली दफा डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया था कि दाऊद ने खेमा खड़ा किया और उस खेमा में क्या था? सिर्फ अहद का संदूक, जबकि खेमा इज्तिमा भी मौजूद था। लेकिन दाऊद अहद के संदूक को वहां पर नहीं लेकर गया सैला में, बल्कि कहां लेकर आया? ये अपने शहर सयून यरूशलेम में। और वहां पर उसने खेमा खड़ा किया, खुदावन के लिए खेमा खड़ा किया। और इसका सबब क्या था कि दाऊद ने प्रस्तिश और सताइश का वो पैटर्न इस जमीन के ऊपर मुतारफ कराया जो आसमानी पैटर्न था। और इन मैसेजेस से आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों वो दाऊद खुदा का प्यारा बन गया और उसके दिल के मुआफिक ठहरा है। और दाऊद ने वो उन सब चीजों का मुकाशिफा दिया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जो कुछ आसमान पर हो रहा है था। वो उसने जो है ये सब कुछ जो है अब उस खेमा को जो उसने खड़ा किया था उसमें उसने इम्प्लीमेंट किया। आज इसका भी जिक्र करूंगा। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि प्रस्तिश का जो सिस्टम पैटर्न जो है आसमान पर है वो हमें सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलता है? मुकाशिफा की किताब में। और मैंने लास्ट टाइम डिटेल आपको बताया कि मुकाशिफा की किताब में किस कदर जो है वर्शिप का जो तरीका है वो हमें मिलता है। और दाऊद ने उसको अडॉप्ट किया है। और मैं बता भी रहा था कि मुकाशिफा की किताब को सिर्फ आप इस सेंस में ना पढ़ें कि ये जो है वो जजमेंट की है, नहीं, ये प्रस्तिश की किताब है, प्रस्तिश सीखने की किताब है। मैं लास्ट टाइम बता रहा, दिस इज द हैंड बुक ऑफ वर्शिप। अगर आपने वर्शिप सीखना है या करना है तो आपको यह मुकाशिफा की किताब को कंसर्न करना होगा। पूरी किताब में आप वर्शिप देखेंगे और इस सारे दुरानिया में आप खुदा को तक नशीन देखेंगे। आमीन। कि खुदा प्रस्तिश पर तक नशीन होता है। आपको कुरबीन, सराफीन, जानदार, बुजुर्ग, लाखों करोड़ों फरिश्तेगार आपको मिलेंगे जो प्रस्तिश सताइश पर हमद करते हैं। और फिर बड़ी भीड़ जो है उसके उनके साथ मिल जाएगी जो उसकी प्रस्तुति करती हैं। आमीन। और फिर नए गीत वहां पर गाए जाते हैं आसमान पर। और ये सिलसिला जो है ये जारी और सारी है और ये जारी और सारी रहेगा। आमीन। और यही बात दाऊद ने पकड़ी और उसने जो है नए गीतों के साथ जो है खुदा की प्रस्तुति को जो है वो उठाया है। आमीन। और इसलिए वो कई जगहों के ऊपर कहता है कि आओ एक नवा गीत रब ने गाओ।
تو اس نے مختلف جگہوں پر زبوروں میں اس بات کا ذکر کیا. بعض دفعہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ نیک گیت سے کیا مراد، کیونکہ آسمان پر نیک گیت گائے جاتے ہیں. لہذا آسمان پر روزانہ نئے والیومز جاری ہوتے ہیں، اور داؤد کے خیمہ میں بھی ایسا جاری اور ساری تھا. آمین. اور روزانہ جو ہے داؤد اور اس کے ساتھی جو ہے نئے گیتوں کے ساتھ، نئے زبوروں کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی پرستش کرتے ہیں. یہ 150 زبور ہمارے پاس موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ صرف ہمارے پاس ہے، لیکن جو کچھ داؤد نے گا دیا یا گایا وہ شاید جو ہے یہاں پر ریٹن نہیں ہوں، جو وہ روزانہ خدا کی پرستش میں وہ گاتا تھا. وہ جہاں پر بھی ہوتا، جیسی مرضی سچویشن ہوتی، وہ خدا کی پرستش گا کر بجا کر کرتا تھا، اور یوں اس کو خدا نے پسند کر لیا. آمین. اور پھر میں نے بتایا کہ یہ 4000 لوگوں کو اس نے مقرر کیا ہے. صبح اور شام خدا کی پرستش جاری اور ساری رہتی تھی. آپ حیران ہوں گے کہ داؤد نے ان چیزوں کو لیا ہے، اور آسمان پر بھی خدا کی پرستش جاری اور ساری رہتی ہے. تو داؤد نے بھی اس سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا کہ اس نے جو ہے 4000 گانے بجانے والے تھے جو اس کے ساز تھے، وہ بجتے تھے 24 گھنٹے صبح شام. وہ خدا کی پرستش جو ہے داؤد کے خیمہ کے اندر جاری رہتی تھی. آمین. آج میں بتانے جا رہا ہوں کہ پرستاروں کا جو داؤد کے خیمہ میں تھے، ٹھیک ہے، داؤد کے خیمہ میں جو پرستار تھے وہ کس انداز کے تھے، اور اس سے ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے. اور جس طریقے کے ساتھ ہمارے پرستار ہیں یا ساری کانگریگیشن ہیں، اس میسج کے ذریعے سے آپ سیکھیں گے، اور آپ اس لیول کے اوپر کھڑے ہوں گے. اور یہ خدا کا لیول ہے جو داؤد نے پکڑا اور اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ نہ صرف کوائر، نہ صرف بجانے والے، بلکہ جو کلیسیا کا ایک فرد جو ہے وہ اسی طور پر خدا کی پرستش کرے. کیوں؟ کیونکہ خدا داؤد کے خیمے کو دوبارہ کھڑا کرنے جا رہا ہے. آمین. میرے ساتھ نکالیے، ان باتوں کو ہم سٹارٹ کریں گے. ایمان 15واں باب 15 اور 16 17 آیت، جس میں جو ہے یعقوب نے جو ہے وہ اس بات کا ذکر کیا کہ خداوند کیا کرنے جا رہا ہے کہ داؤد کے خیمے کو کھڑا کرے گا. ایمان 15واں باب اس کی 15ویں آیت. اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں، اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیمہ کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کروں گا، تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خداوند کو تلاش کریں. یہ وہی خداوند ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا ہے. آمین. خداوند کیا کرے گا؟ داؤد کے گرے ہوئے خیمہ کو اٹھائے گا، اس کے پھٹے ٹوٹے کی کیا کرے گا؟ مرمت کرے گا، اور پھر وہی کچھ ہوگا جو داؤد کے خیمہ میں ہوتا تھا. آمین. اور جب یہ چرچ کونسل میں اس بات کا ذکر ہوا کہ خدا داؤد کے خیمے کو کھڑا کرے گا، اور یہ کھڑا ہوا ہے، اور غیر قومیں آئیں، جو ہے پرستش اور ستائش کا ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس ہوا ہے. اس بات کو جو کونسل نے اس حوالے کو جو ہے وہ اٹھایا ہے، وہ آموز کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت ہے. اس کو بھی ہم جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھیں گے تاکہ یہ ذہن میں ہر وقت ہمارے رہے کہ خدا کیا کرنے جا رہا ہے اور خدا کیا کرنا چاہتا ہے. عزیز بھائیو، آپ کو حیرانی ہونی چاہیے اس بات کی کہ خدا کیا کر رہا ہے. پروفیسی کیا ہے، نبوت کیا ہے، بائبل مقدس میں کس طرف اشارہ ہے. خدا کس چیز کو کھڑا کرنا چاہ رہا ہے، کس کو ری بلڈ کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ کیا ری بلڈنگ ہے. جو ہے آموز کی کتاب 9واں باب اس کی 11ویں آیت. میں اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رکھنوں کو بند کروں گا، اس کے کھنڈر کی مرمت کر کے اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا، تاکہ وہ ادوم کے بقیہ اور ان سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتی ہیں قابض ہوں. اس کو وقوع میں لانے والا
खुदावन फरमाता है। आमीन। ये दाऊद का खैमा है। और पहली दफा जो दाऊद ने काम किया वो जब खुदा वो के अहद के संदूक को कई दुहाइयों के बाद कहा जाता है 50-60 साल के बाद क्या हुआ, वो क्रीत येरीम से क्या किया, उसने अहद के संदूक को वहां से उठाया और अपने शहर में लेकर आया। दूसरा शमूएल उसका 6 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, और वो खुदावन के संदूक को अंदर लाए और उसे उसकी जगह पर उस खैमा के बीच में जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था रखा। दूसरा शमूएल 6 बाब उसकी 17 आयत में इसका जिक्र है। तो लिहाजा अहद का संदूक जो दाऊद क्रीत येरीम से लेकर आया, अबीनादाब के बेटे अलीएजर के घर से जब वो लेकर आया तो उसने उसे कहां पर रखा है, उसे उस खैमा में रखा जो दाऊद ने खुद खड़ा किया था। हालांकि खैमा इज्तिमा मौजूद था जो आपको बियाबान में नजर आता है। खैमा इज्तिमा जो मूसा ने बनाया था वो सैला में था और वहां पर जो है सब चीजें मौजूद थी। और जो है बदबख्ती ये आप ये देखिए इसराइलियों की कि जब अहद का संदूक वहां से एक दफा निकला वो दोबारा उस जगह के ऊपर नहीं पहुंचा, फिर वो क्रीत येरीम में जो है वो रहा और वहीं पर जो है किसी ने उसकी फिक्र नहीं की है। लेकिन दाऊद ने बड़े अरसे के बाद इस बात को लिया कि मैं अहद के संदूक को अपने शहर में लेकर आऊंगा, अपने घर में लेकर आऊंगा। और हैरानी की बात यह है कि और उसने ये दलेरी की है और अपना, और वो ये भी बात देखिए कि उसने उसे सैला में नहीं पहुंचाया बल्कि एक नया खैमा उसके लिए खड़ा किया है जिसे दाऊद का खैमा कहा जाता है। याद रखिए कि ये प्रोफेसी जो खुदा या आमोस की किताब में, ईमाल की किताब में नजर आती है, ये दाऊद के खैमे की बात की जाती है। बाज़ दफा इसको यूं कहा जाता है कि दाऊद इसराइल की बहाली या जो है वो बहाल करेगा, लेकिन ये टिपिकली वो जो मैं आपको जो टीचिंग दे रहा हूं इन दिनों में वो दाऊद के खैमा के ऊपर है कि खुदा इस तर्ज का खैमा खड़ा करना जा रहा है जो दाऊद ने खड़ा किया था। आमीन। लेकिन उसने सैला में जो खैमा लगा हुआ था खुदा ने उसे रद्द कर दिया। ज़बूर 78 उसकी 60 वर्ष में लिखा है उसने सैला के मस्कन को तर्क कर दिया, यानी उस खैमा को जो बनी आदम के दरमियान खड़ा किया था। लिहाजा आप ये देखिए कि खुदावन ने उस खैमों को क्या किया, बोलिए, तर्क कर दिया। आपको इन बातों की समझ आ रही है? ये 3 हफ्तों से ये तीसरा हफ्ता चल रहा है, मैं इसके ऊपर ये इन वर्सेस को दोबारा आपके सामने पढ़ रहा हूं ताकि आपके ज़हन में ये चीजें आ जाए। ये पूरी टीचिंग है, जैसे पूरा खैमा इज्तिमा है, सेम इसी तरह जो दाऊद का खैमा खड़ा हुआ है इसके बारे में हम नावाकिफ हैं। एक बहुत बड़ा जो है कलीसिया का बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत सारे खादम भी जो है वो इससे जो है वो बेबहरा हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ जो है अपने ऑफिस में और दीगर लोगों से भी डिस्कस किया कि आप दाऊद के खैमे से वाकिफ हैं, और बहुत सारे लोग इन चीजों से नावाकिफ हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि दाऊद के खैमा, हमें मूसा के खैमा के बारे में मालूम है, हमें जो है सुलेमान की हैकल से जो है से वास्ता है, ये दाऊद का खैमा क्या है? अजीज बहनों भाइयों, दाऊद का वो खैमा है जिसको खुदा खड़ा करने जा रहा है। आमीन। फिर बात आप फॉलो की है, खुदा किसको खड़ा करने जा रहा है? दाऊद के खैमा को खड़ा करेगा। इसे ज़बूर 132 वर्स 13-14 में लिखा है, क्योंकि खुदावंद ने सिय्योन को चुना है, उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। ये हमेशा के लिए मेरी आराम गाह है, जिसमें मैं वहीं रहूंगा क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। तो ये देखिए खुदा का रवैया, खुदा की चॉइस वो क्या है कि मैं सिय्योन को चुन लिया है, मैंने इस खैमा को चुन लिया है, मैंने इसे अपने मस्कन के लिए पसंद कर दिया, यानी मैं इसमें रहूंगा, ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है, मैं यही रहूंगा क्योंकि मैंने इसे क्या किया है? पसंद किया है। ज़बूर 132 वर्स 13 and 14। आमीन। Praise the Lord। आज हम उन प्रस्तावों की बाबत बात करेंगे जो दाऊद के खैमा में मौजूद थे और खुदावंद की परस्तिश करते थे। आमीन।
वहां पर वर्शिप होती थी। अगर मैं खैमा इज्तिमा की बात करूंगा तो मैं जो है इससे हटकर जो है बातें करूंगा। वो मैं बात करूंगा कि लावी जाते वहां पर वो ये करते थे वो करते थे, लेकिन यहाँ का जो माहौल, यहाँ का एटमॉस्फेयर जो वो बड़ा डिफरेंट है, बड़ा हटके है। आमीन। जब आप पहली तवारीख उसका 15वां बाब, पहली तवारीख उसका 16वां बाब पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि दाऊद के खैमे में जो है कौन कौन से ऐसे नाम थे वो रिटन है कि इस खैमा में जो है क्या हो रहा है कि ये लोग हैं जो खुदा की परस्तिश और उसकी सताइश करते हैं। आमीन। मेरे साथ निकाल ये पहली तवारीख उसका 15वां बाब। आप पहली तवारीख 15वां बाब और 16वां बाब पढ़ेंगे। ये वो डेज हैं जिसमें दाऊद ने जो है इससे पहले कि वो अहद के संदूक को दोबारा वो लेकर अपने यरूशलेम में लेकर आए, तो उसने ये सारा सेटअप जो है वो बनाया और सारा क्रिएट किया, उसको जो है बनाया ताकि खुदा की परस्तिश हो सके। आपको मालूम है कि जब दाऊद अहद के संदूक को पहली दफा अपने शहर में लाना चाह रहा था तो उससे गलती हो गई और वहां पर उजा की डेथ हो गई और वो बाहर जो है अबेद अदूम के घर में वहां पर चला गया और दाऊद 3 महीने तक वेट करता रहा कि मैं किस तरीके से, किस अंदाज से जो है वो क्या जो है अहद के संदूक को दोबारा लेकर आऊं। और इस दौरान में उसने ये सारा सेटअप जो है वो बनाया है और यूं देख लीजिए कि दाऊद ने वो खड़ा किया है। जब आप पहली तवारीख उसका 15वां बाब उसका 16वां बाब पढ़ेंगे वो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तौर पर उन्होंने अहद के संदूक के लिए काम किया है। आमीन। यह पहली तवारीख उसका 15वां बाब उसकी 22वीं और 27वीं आयत अगर आप पढ़ें तो वहां पर एक शख्स का नाम है कनानिया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसका 22वीं आयत, कनानिया लावियों का सरदार गीत पर मुकर्रर था। वो गीत सिखाता था क्योंकि वो बड़ा ही माहिर था। आमीन। लिहाजा दाऊद के खैमा में जो सरदार गीत मुकर्रर हुआ था, जो है क्वायर लीडर या डायरेक्टर था या गाने वाला था, वो कौन था? कनानिया था। वो गीत सिखाता था क्योंकि वो बड़ा ही माहिर था। आमीन। और इसकी 27वीं आयत भी पढ़े तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है और दाऊद और सब लावी जो संदूक को उठाए हुए थे और गाने वाले और गाने वालों के साथ कनानिया जो गाने में उस्ताद था, कतानी पैरहन से मुलब्बस था और दाऊद कतान का अफूद भी पहने था। आमीन। लिहाजा आप ये देख सकते हैं कि जब अहद का संदूक जब दाऊद अबीद अदूम के घर से उठाकर लेकर आ रहा था तो उसने क्या किया था कि दाऊद और सब लावी जो संदूक उठाए हुए थे और गाने वालों के साथ कौन था? बोलिए, कनानिया था जो गाने में क्या था? उस्ताद था। वो क्या पहने हुए थे? वो सफेद लिबास पहने हुए थे, कतानी जो है वो पहनानों से मुलब्बस थे और दाऊद भी उनके साथ अफूद पहने हुए था। आमीन। लिहाजा जब आप इसके ऊपर मैंने जो है वो पहले सर्मन में ये डिटेल के साथ बात की थी कि जो है दाऊद के खैमे में सिर्फ एक ही चीज थी और वो क्या था? अहद का संदूक, शहादत का संदूक, खुदा का संदूक, अहद का संदूक, सारी जमीन के मालिक का संदूक। ये सारी बातें मैंने डिस्कस की। इससे क्या मुराद ली जाती है? द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमीन। द तख्त ऑफ गॉड, थ्रोन ऑफ गॉड। लिहाजा आप ये देखिए कि अहद के संदूक के सामने, उसकी हुजूरी में या उसके तख्त के सामने गाने वाले जो है मौजूद थे और गाने वालों में जो है सारे फरिश्त नाम आपको कौन सा मिल रहा है? बोलिए, कनानिया। कौन सा नाम है? फिर से बोलिए। ये कौन था? उस्ताद था। गाने में क्या था? माहिर उस्ताद था। ये अब बात सामने आनी चाहिए कि खुदा की हुजूरी में अहद के संदूक के सामने, उसके तख्त के सामने जो है कैसे, किस तरह से जो है गाने वाले होने चाहिए, बजाने वाले होने चाहिए। माहिर उस्ताद। ये प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो है थ्रोन ऑफ गॉड, उसके तख्त के सामने। ये डंग डपो काम नहीं है। हालेलुया। और आप ये देखिए कि जब वो अहद के संदूक को किस तौर पर लेकर आए हैं,
बाइबल मुकद्दस में लिखा उसकी 28वीं आयत में 15वें बाब की 28वीं आयत में, यूं सब इसराइली नारे मारते और नरसिंगों, तुरुइयों और झांझों की आवाज के साथ सितार और भरबल को जोर से बजाते हुए खुदा उनके अहद के संदूक को लाए। तरीका कार कैसा है अहद के संदूक को लाने का? तरीका कार कैसा है अहद के संदूक को लाने का और अहद के संदूक के सामने जो है बैठने का? वो शिव, सितार, जो है झांझ। अगर हम में से कौन है जो है झांझ बजाने में अच्छे तरीके से झांझ बजा सकता है? हाथ खड़ा करेगा। झांझ बजाता है जो अच्छे तरीके से, खड़े हो, खड़े हो, मैं आप खड़े हो, जो झांझ बजाते हैं, बजा सकते हैं। ओके, अब और सुनिए, अगले संडे में आपके पास झांझ होनी चाहिए और मैंने चाहूंगा कि अगले संडे में इसका अरेंज करूं। वर्शिप करते वक्त हर एक जो बजा सकता है वो झांझ बजाएगा। Praise the Lord. और आप हैरान होंगे। अगली बात जो, थैंक यू वेरी मच, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये चीजें जो है इस तरीके के साथ जो है खुदा की वर्शिप होती है। खुदा दाऊद के खैमे को खड़ा करने जा रहा है और यह याकूब जो खुदा का भाई था उसने कौंसल में इसका जो है वो जिक्र किया है। जब जो है गैर यहूदियों और गैर यहूदियों यूनानियों की बातें की जा रही थी, गैर कौम की बात की जा रही थी कि वो एंटर हो रही हैं, तो उसने इस बात का जिक्र किया था कि इन बातों के बाद वो दाऊद के खैमों को क्या करेगा? खड़ा करेगा। इस खैमा में हर एक को यह इजाजत है आए और हमारे रब्बुल फाज की प्रस्तुति और उसकी सताइश करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली तवारीख उसका 16वां बाब और उसकी जो है आयत आप पढ़ेंगे, आप हैरान होंगे कि दाऊद ने ये सब कुछ कैसे किया है। आप पहली 4 आयत से पढ़ेंगे तो आपको जिक्र मिलेगा कि उसने लावियों में से बाजों को मुकर्रर किया कि खुदावंद के संदूक के आगे खिदमत करें। किसके सामने? खुदावंद के संदूक के आगे खिदमत करें। मैं दाऊद की जो है स्ट्रेटजी और उसकी समझ से हैरान हूं कि वो किस तौर पर यह खुदा की इल्हाम और उसके मकाशफे से भरा हुआ शख्स था। अगरचे जो खैमा था वो जबून में लगा है और वहां पर मस्बा वहां पर है और उसने वहां पर क्या किया था? कहानों को मुकर्रर किया कि वहां पर वो सुबह और शाम या सोखनी कुर्बानियां वहां पर पेश किया करें। लेकिन जो है जब अहद के संदूक के सामने लावी जो है वो मुसलसल खुदा की प्रस्तुति और उसकी सताइश कर रहे थे। क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अगर आपको नहीं आ रही है तो आप इसे दोबारा सुनिएगा, आप इसको दोबारा जो है गौर से जो है सुनिएगा और अगर नहीं समझ आए तो फिर पूछिएगा, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है कि आपकी समझ खुलनी चाहिए। क्योंकि खुदा ऐसे खैमे को खड़ा करने जा रहा है जो दाऊद का खैमा है, दाऊद की तर्ज के खैमा को, बल्कि उसी खैमे को जहां पर दाऊद ने वर्शिप पैटर्न को जो है वो मुतारफ कराया है। आमीन। पहली तवारीख उसका 16वां बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, उसने लावियों में से बाजों को मुकर्रर किया कि खुदावंद के संदूक के आगे खिदमत करें और खुदावंद इस्राएल के खुदा का जिक्र और शुक्र और क्या करे? उसकी हमद करे। लिहाजा जो है आप ये हैरान होंगे, दाऊद के खैमे की ये बात हो रही है, वहां पर उसने लावियों को मुकर्रर किया है कि वो क्या करें? खुदा के अहद के संदूक के सामने वो शुक्र करते रहें, वो जिक्र करते रहें और वो जो हमद करें। ये मुसलसल ये काम हो रहा था और अवलन जिस शख्स को उसने मुकर्रर किया वो दूसरा शख्स था जो है आसिफ। 5वीं आयत पढ़े तो वहां पर आपको जिक्र मिलेगा अवल आसिफ। आमीन। इसको उसने मुकर्रर किया आसिफ। इसके मतलब उसके आगे चलकर मैं और इसकी बात करता हूं। तो गोया आप ये देखिए कि उसने आसिफ को मुकर्रर किया, हेमान को मुकर्रर किया, यदूतून को मुकर्रर किया कि वो खुदावंद के अहद के संदूक के सामने खुदा की प्रस्तुति करें। आमीन। ये 3 कनानियां सरदार माहिर उस्ताद था, वो सिखाता भी था, वो माहिर उस्ताद था और मैं उसकी जो है टीचिंग प्रोसेस को भी बताऊंगा कि एक्चुअली वो सिखाते क्या थे। आसिफ, हेमान और यदूतून को मुकर्रर किया कि वो खुदावंद के अहद के संदूक के सामने क्या करे? खुदा की प्रस्तुति करे। अव्वल किसको मुकर्रर किया? आसिफ। ये सैमुएल की नस्ल से था, ये सैमुएल भी जो है वो कहाती था
ٹھیک ہے، اور وہ آصف جو ہے وہ اس کے بیٹے کا بیٹا یعنی اس کا پوتا تھا. تو یہ ہمارے جو ہے سیموئل کو بھی یہ عادت تھی، یہ اس کی جو ہے اس کا کہہ لیجیے کہ ہیبٹ تھی کہ وہ جو ہے خدا کے عہد کے صندوق کے پاس رہتا تھا. آمین. آصف کو بھی جو ہے یہ شرف مل گیا کہ وہ عہد کے صندوق کے سامنے رہا کرے. میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ خود سے عہد کے صندوق کے سامنے بیٹھ کر پرستش کریں، جو ہے اس کی حضوری میں اس کے تخت کے سامنے آپ کے بچوں کو بھی جو ہے یہ شرف مل سکتا ہے. آمین. اور جب آپ جو ہے 5ویں آیت کا بھی حصہ پڑھیں، اس میں اور بہت سارے نام ہیں. آصف جھانجوں کو زور سے بجاتا ہوا. آمین. اس نے کیا کیا ہے، وہ ستار و بربر کے ساتھ، یہ سارے لوگ آصف کے ساتھ اور بہت سارے لوگ تھے جو اس میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور لکھا ہے وہ ستار و بربر کے ساتھ اور آصف جھانجوں کو زور سے بجاتا ہوا. آمین. کیا کرتے تھے؟ خدا کے عہد کے صندوق کے آگے رہا کریں. آمین. خدا کے صندوق کے آگے کیا کریں؟ یہ رہا کریں. پہلے اسی دن داؤد نے یہ ٹھہرایا کہ خداوند کا شکر آصف اور اس کے بھائی بجا لایا کریں. آمین. جب فرسٹ ٹائم عہد کا صندوق جب اس کے خیمہ میں آیا تو اس نے آصف کو مقرر کر دیا، اس کے بھائیوں کو یہ مقرر کر دیا کہ یہ کیا کریں کہ یہ عہد کے صندوق کے سامنے جو ہے وہ شکر کیا کریں. آمین. کیا کریں؟ پہلے دن اس نے جب وہ یہ مقرر کر دیا کہ وہ شکر کیا کریں. آمین. 41ویں آیت اسی جب 16 باب کی 41ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان کے ساتھ ایمان اور یدتون اور باقی چنے ہوئے آدمیوں کو جو نام بنا مذکور ہوئے تھے تاکہ خداوند کا شکر کرے کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے. انہی کے ساتھ ایمان اور یدتون تھے جو بجانے والوں کے لیے ترویاں اور جھانجھے اور خدا کے گیتوں کے لیے باجے لیے ہوئے تھے اور بڑی یدتون دربان تھے. ہاللیلویا. اور یہ اسی دن اس نے یہ سیٹ اپ کریٹ کیا، اس کو جو ہے اس نے اسٹیبلش کیا. اور پھر اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہوا تب لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں میں وہ رخصت ہوئے ہیں. آمین. عزیز بھائیوں، جو ہے داؤد نے جو ہے وہ کنانیہ کو، آصف کو، ہیمان کو، یدتون کو جو ہے یہ ان 4 لیڈرز کو جو ہے یہ مقرر کیا تاکہ کیا ہو سکے، خدا کی پرستش ٹھیک طریقے کے ساتھ ہو سکے، عہد کے صندوق کے سامنے ہمیشہ ہوتی رہے. اور میں نے لاسٹ میں بتایا 4000 لوگ جو ہے وہ مقرر ہوئے. وہ صبح و شام خدا کی پرستش جو ہے وہ داؤد کے باجوں سے جب مسلسل ہوتی رہے. یہ چیزیں اس نے کہاں سے سیکھ لی؟ بعض دفعہ آپ جب پڑھے تواریخ کو جو ہے اس کے 15ویں اور 16ویں چیپٹر پھر اس کے 25ویں باب سے اور آپ پڑھیں جو اس نے ہیکل کے اندر یہ سب چیزیں جو ہے انٹروڈیوس کرائی ہیں. حیران کن بات ہے اس نے 4 کا جو وہ چوز کیا ہے، یہ خدا کے تخت کے سامنے جو ہے اس نے اس کانسیپٹ کو لیا ہے. اس میں 24 جو ہے وہ بزرگوں کا جو ہے بزرگوں کی بات کی ہے، اس نے 24 جو فریق جو وہ لیے ہے. یہ جو ہے اس سیٹ اپ کو جو ہے وہ دیکھا ہے، اس نے اس کو اپنے خیمہ کے اندر انٹروڈیوس کیا ہے. 4 جانداروں کے کانسیپٹ کو اس نے جو ہے کروبیوں جو ہے وہ سرافیم کو اور اس نے جو ہے اس کے ساتھ کروبیوں کو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس نے بزرگوں کو، ان سب چیزوں کو جب اس نے جو ہے معائنہ آسمان پر کیا ہے اس نے خیمہ کے اندر ان چیزوں کو جو ہے وہ لے کر آیا. اور جو ہے کتنا قریب ہے اس نے 4 لوگ جو ہے وہ عہد کے صندوق کے سامنے مقرر کر دیے تاکہ کیا ہو سکے، اس کی پرستش ہو سکے. آمین. آمین. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے وہ شبداز داؤد نے جو ہے ان چیزوں کو سامنے جب وہ پیش کیا ہے. پریز دی لارڈ. اور جب اس کی 37ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور اس نے وہاں خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے آصف اور اس کے بھائیوں کو ہر روز کے ضروری کام کے مطابق ہمیشہ صندوق کے آگے خدمت کرنے کو چھوڑا کہ تم ہمیشہ عہد کے صندوق کے سامنے کیا کرو گے؟ خدا کی پرستش کرتے رہو گے. آمین. پریز دی لارڈ. آمین. آمین. اور پھر انہوں نے ایمان اور یدتون کو جو ہے وہ مقرر کیا ہے. اور جب آپ 25واں باب اس کی پہلی 5 آیات پڑھیں آپ کو ملے گا کہ
वो इस खैमा के अंदर जो है उसने क्या चीजें जो है वो बयान की हैं। 25वां बाब उसके पहली 5 आयत में लिखा है, फिर दाऊद और लश्कर के सरदारों ने आसिफ और हेमान यदूतून के बेटों में से बाज़ों को खिदमत के लिए अलग किया ताकि वो बरबत और सितार और छान से नबूवत करें। क्या करें? बरबत और सितार और छान से नबूवत करें। जब जो है वो ये अभी गाया नहीं जा रहा, अभी क्या किया जा रहा है, जो है वो ऑर्गन बज रहा है, अभी जो है वो गिटार बज रही है, अभी तबला बज रहा है, अभी छान बज रही है, और फिर जो है उसके साथ नबूवत करें। और जो उस काम को करते थे उनका शुमार उनकी खिदमत के मुताबिक ये था, आसफ के बेटों में से जकूर। और फिर जब उसकी जो है बाइबल का दर्शन है, आसफ के ये बेटे आसफ के मुताहत थे जो बादशाह के हुक्म के मुताबिक नबूवत करता था। आमीन। बेटे उसके क्या थे? जो है उसके मुताहत थे। वह पूरा का पूरा घर वो क्या कर रहा था? वो शिक कर रहा था। आसफ उसके बेटे, और फिर यदूतून से बनी यदूतून, सो इसके और भी बेटे थे, ये 6 अपने बाप यदूतून के मुताहत थे जो बरबत लिए रहता और खुदावंद की शुक्रगुजारी और हमद करता हुआ नबूवत करता था। आमीन। यदूतून किसके साथ जो है वो वर्शिप करता था? अपने 6 बेटों के साथ। आसफ किसके साथ जो है वो नबूवत करता था? बोलिए, अपने बेटों के साथ। अच्छा भाइयों, हेड्स आपको मैं उठाना चाहता हूँ, क्या हम में से कौन है जो शाही कानों का फिरका मुकद्दस कौम है और बरगज़ीदा नस्ल है? हमें से हर एक अपना हाथ खड़ा करने में नहीं शर्माएगा, नहीं झिझकेगा कि मैं जो है यीशु मसीह के वसीले से जो है कहानों की मुबारकत, और मैं जो है शाही कानों का फिरका हूँ, मुकद्दस कौम हूँ और बरगज़ीदा नस्ल हूँ। मैं आपको जो है तमाम जो है लीडर्स को, तमाम जो है हेड्स को जो है ये कहना चाहूंगा, उस आसफ के बेटे जो हेमान जो यदूतून के बेटे उनके मुताहत थे और वो जो है प्रस्तुश और सताइश के साथ नबूवत करते थे। हालेलुया, आमीन। आपके बेटे और आपकी बेटियां आगे चलकर अब जो है आप जो है वो हेमान को पढ़ेंगे, उसके 14 बेटे और 3 बेटियां थी। कितने बेटे थे? 14 बेटे और 3 बेटियां थी। ये सब खुदा की प्रस्तुश करते थे। आमीन। चौथी आयत रहा हेमान। सो हेमान के बेटे, ये सारे आपको जिक्र मिलेगा, ये सब हेमान के बेटे थे जो खुदा की बातों में सींग बुलंद करने के लिए बादशाह का गैबीन था। हेमान गैबीन भी था, नबी भी था, और खुदा ने हेमान को 14 बेटे और 3 बेटियां दी थी। ये सब खुदावन के घर में गीत गाने के लिए अपने बाप के मुताहत थे और जांच और सितार और बरबर से खुदा के घर की खिदमत करते थे। और आसफ और यदूतून और हेमान बादशाह के हुक्म के ताबे थे। कैसी बड़ी हैरानी है, ये कैसा बड़ा है वो एक सिस्टम जो है वो खुदा के अहद के संदूक के सामने है। नबूवती तरीके के साथ जो है खुदा की प्रस्तुश हो रही है, सितार के साथ, जांच के साथ, बरबर के साथ खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो रही है। खुदा की बातों में सीख बुलंद करने का सीख बुलंद किया जाता था। आप हैरान हो, उसके बेटे भी और उसकी बेटियां भी, हेमान के बेटे भी और उसकी बेटियां भी। आमीन। उसके बेटे भी और आमीन, हमारे बेटे भी और बेटियां भी। खुदा के घर में क्या करना चाहिए उनको? हम दोस्ताइश करनी चाहिए, उसकी प्रस्तुत करना चाहिए है। और ये बहुत मुश्किल हुआ पड़ा हुआ है कि आजकल जो है वो ज्यादा जो है वो वर्शिप नहीं की जाती है, सिर्फ खाना में जो है वो लगाया कर जो है सुनने तक हद तक रखा गया है। मैं आपको भागना चाहूंगा कि आप क्या करें? बोलिए, प्रस्तुत करें। कौन है सबसे पहले आकर मिसरा गाएगा उसकी प्रस्तुत करेगा? कौन सा बाप आएगा, कौन सा लावी आकर उसकी प्रस्तुत करेगा? हालेलुया। जो है आएगा और ये जल्दी सब मिलकर रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाज़ों, ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सिर दरवाज़ों, ऊंचे हो सब दारों।
जलाता बादशाह है। Praise the Lord. दाऊद के खेमा में कनानिया क्या था बोलिए? सरदार गीत गाने वाला था, मास्टर ऑफ द सॉन्ग। कौन था ये? मास्टर ऑफ द सॉन्ग था, ठीक है, फायर लीडर था। और इब्रानी ज़बान में इस फ्रेज का जो मतलब है हसा हमासा, इसका मतलब है, जिसका मतलब है द प्रिंस ऑफ बेयरिंग द बर्डन। अब आपको जो है सॉन्ग की जो है वो मतलब पता चलेगा। जो गीत गाया जाता है, जो गीत गाने वाले हैं, जरा आप वो कान खोल कर सुने, और जो गाते हैं उसकी प्रोसेस में गीत गाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। सॉन्ग, ठीक है, ये इसका मतलब बर्डन। इसका मतलब क्या है? बर्डन। सॉन्ग का मतलब क्या है? बर्डन, ठीक है, भार। क्या है ये? मासा, ठीक है, बर्डन, ठीक है। ये टेक्निकली जो वर्ड है ये, जिसका मतलब है नबियों का नबूवती भार है, जो बाइबल बयान करती है। बाइबल इसके बारे में बयान करती है। हबक्कूक पहला बाब पढ़ लिया है। हबक्कूक नबी की रोया का बारे नबूवत, ये बारे नबूवत है, द बर्डन ऑफ प्रोफेसी। मलाकी पहला बाब पढ़ लिया है। खुदावंद की तरफ से मलाकी की मार्फत इस्राएल के लिए बारे नबूवत, ये बर्डन, ठीक है, मासा। नहूम पहला बाब पढ़ लिया है। निनवा की बाबत बारे नबूवत, आमीन, ठीक है। सॉन्ग इस आयत में इब्रानी लफ्ज को, उसकी नबूवती भार को बयान करता है। आमीन। लिहाजा आप ये देखिए, जब कनानिया जो है वो गीत गाने वाला का सरदार है, गीत सरदार मुकर्रर हुआ है। जब सॉन्ग खुदा के हुजूर में वो गाता था, तो गोया वो उस भार के साथ जो है वो नबूवती बर्डन के साथ वो खुदा के हुजूर में प्रस्तुत करता था। आमीन। वो नबूवती स्पिरिट, ठीक है, नबूवत प्रोफेटिक जो सॉन्ग्स है वो गाते थे, प्रोफेटिक स्पिरिट के साथ जो है वो खुदावंद के हुजूर में वो सॉन्ग गाते थे। ये जो है आज ये सॉन्ग गाना जो है वो ऐसा है जैसे नुमाइश है, ये ऐसा है जैसे फनकारी है। बेशक इसमें फनकारी नजर आती है, इसमें महारत नजर आती है, लेकिन उस बात को जो इसका मतलब है सॉन्ग का, ये भार का बयान, भार के मानों में है, ये बर्डन के मानों में है। और जब बर्डन की बात आती है तो इसका मतलब क्या है? ये जिम्मेदारी की बात आती है। लिहाजा कनानिया जो सरदार गीत मुकर्रर हुआ है, वो इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो उसके ऊपर थी कि मुझे नबूवती जो है वो स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी के साथ जो है वो इस गीत को जो है डिलीवर करना है, इसको अपने मुंह से निकालना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लिहाजा जब कनानिया खुदा जब वो गाने में उस्ताद था, माहिर था, वो सिखाता भी था। वो सिर्फ ये जो दाऊद की क़यामत में जो सिखाने का और गाने का जो तरीकाकार वो क्या है, वो जो है परफेक्ट था। लिहाजा वो परफेक्ट वे को बयान करते थे और सिखाते थे कि इस तौर पर जो है नबूवती भार को आपने जो है डिलीवर करना है, ताकि आप अपनी जिम्मेदारी को बयान कर सकें। आमीन। मेरी बात आप समझे हैं? लिहाजा जो शख्स खुदा की हुजूरी में आता है और वो सदाइश के लिए अपने मुंह को खोलने की कोशिश करता है, तो उसे मालूम होना चाहिए कि मैं जब प्रोफेटिक स्पिरिट के साथ जब प्रोफेटिक सॉन्ग को जब खुदा की हुजूर में गाऊंगा। आमीन। वो गाकर, वो बजाकर, वो बरबल बजाते थे, वो सितार बजाते थे, वो झांझ बजाते थे, और जब उसके साथ गाते थे बाइबल का नबूवत करते थे, जबकि वो गीत गाते थे। आमीन। लिहाजा जब वो गीत गाया जाता है, जब सॉन्ग गाया जाता है, जिससे क्या मुराद है? भार। आपके ऊपर भार है, मेरे ऊपर भार है, तुम्हारे के ऊपर भार है, बजाने वालों के ऊपर भार है, और उस भार के मुताबिक जो है, उस बर्डन के मुताबिक जो नबियों के ऊपर हुआ करता था, वो उस अंदाज के साथ जब वो डिलीवर कर रहे हैं। आमीन। ये कैरी करना है, बर्डन कैरी करने का है, ठीक है, जिसमें खास जिम्मेदारी होती है। हैवी वेट जिसे आप कह सकते हैं, इट्स हैवी वेट।
جب آپ ہیوی ویٹ کے ساتھ خدا کے حضور میں آئیں گے تو ٹھیک پرستش اس کی ستائش ہوگی اور نبوت ہوگی، پروفیسی ہوگی. آمین. گانے والے اور پرستار نبوتی بھار کو لیے ہوئے خدا کی کلیسیا کے اندر اس ذمہ داری کو وہ نبھانے والے ہوں. آمین. چنانچہ یہ چیزیں شاید ہم سے پرے ہیں اور ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور یوں آپ ایک فارمل وے کے ساتھ، بڑے روٹین کے ساتھ، بڑے ٹریڈیشنل وے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم خدا کی پرستش کر رہے ہیں. داؤد کے خیمہ میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ بولیے ورشپ. اور کون ہے جو بھار کے ساتھ اس کی پرستش کرنا چاہے گا؟ وہ سونگ کو جو اس کے اندر ہے وہ خدا کی حضوری میں پریش کرے گا. 1 مصرع خدا نے سیموئیل کو بچایا ہے ایک بڑے ایکسیڈنٹ سے. آج وہ شکر گزاری کے لیے مٹھائی بھی لے کر آیا ہے. ہاللیلویا. آئے ہم پرستش کریں گے. رودی جنبش ہووے ایسی بارش پا، رودی جنبش ہووے ایسی بارش پا، دل دھڑکن کا کرتی ساری، دل دھڑکن کا کرتی ساری، روح پاک دعا. رودی جنبش ہووے روح بارش پا، رودی جنبش ہووے ایسی بارش پا. آئیے تالیاں بجاتے ہیں. رودی جنبش ہووے ایسی بارش پا، دل دھڑکن کا کرتی ساری، دل دھڑکن کا کرتی ساری، روح پاک دعا. رودی جنبش ہووے روح پاک دعا. ہر روح بولے ہر روح گاوے یسوع تیرا نام، تک تیرا لگ جاوے تھے، تک تیرا لگ جاوے تھے، لئے تیرا نام. پڑش بابا سپنا نونے مردے گی تو جوان، پڑش بابا سپنا نونے مردے گی تو جوان. دل دھڑکن کا دھڑکی ساری، دل دھڑکن کا دھڑکی ساری، روح پاک دعا. رودی جنبش ہووے ایسی بارش پا، ایسی بارش پا، ایسی بارش پا. ہاللیلویا. کس طور پر نبوتی روح اور نبوتی گیتوں کو جاری کیا جاتا ہے؟ اسپرٹ آف پروفیسی اور پروفیٹک سانگز کو وہ کس طور پر سیکھنا اور سکھایا جانا ہے. یہ داؤد کے خیمہ میں کنانیاں کرتا تھا، اور پھر ہمیں بھی منظم سسٹمیٹیکل وہ ٹیچنگ کو وہ لینا ہوگا. تمام موسیقاروں کو، میوزیشنز کو اور سارے چرچ دونوں کو یہ اس طریقے کو سیکھنا ہوگا. یہ نہیں کہ صرف بجانے والے اور گانے والے صرف وہ سیکھیں، بلکہ جو خدا ان کی پرستش کے لیے مقرر ہیں وہ اس طریقے کو اپنی زندگی کے لیے لے کر آئیں. افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی سکھانے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ صرف اور صرف دنیا دار ہیں، اور وہ دنیا کو وہ انٹر ان کی موسیقی کے اندر اور ان کے گیتوں کے اندر وہ دنیا داری کو انٹر کر دیتے ہیں. کاش کنانیاں ہو. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس ملک میں صرف اور صرف وہ صرف اور صرف شاید
भाई अर्नेस्टमल आए जिसने जो है वर्शिप के स्टाइल को जो है इस ब्राजील के अंदर जो है वो मुतारिफ कराया था। और अब जो कॉपियां चल रही हैं, सिर्फ अब आजकल क्या चल रही हैं, सिर्फ कॉपियां। काश जो है इस तरह की जो है स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी को देंगे, वो क्या किया जाए कि सही मायनों में कनानिया हो, जो उस प्रोफेसी को, उस जो है भार को यहाँ पेश किया जा सके, उस भार को यहाँ डिलीवर किया जा सके, उस भार को कैरी किया जा सके और उसको जो है वो बयान किया जा सके। मैं आपको ये मोटिवेशन देना चाहता हूं कि आप जो है वो सीखिए, आप इसे गाइए। अगर आप जो है सही तौर पर नहीं गा पाएंगे तो फिर सही तौर पर जो है अहद के संदूक के सामने उसकी प्रस्तुति और उसकी सताइश नहीं हो पाएगी। आपको दुनिया से अलग होना होगा, दुनिया की जो है प्रस्तुति से, दुनिया की सताइश से। ये शैतान जो है बराबर उसके पैरेलल जो है ये तरीकाकार जो है वो अपनाए हुए है। आपको शायद ये फिर से आप या तवारी पहला तवारी 15, 16, 17, 18 और ये सारे चैप्टर्स पढ़िएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि वर्शिप होती क्या है, सताइश क्या होती है, बजाना और गाना क्या होता है, ये बाइबल बयान कर सकती है। शैतान ने इस तरीके से जो है जिंदगियों को खराब कर दिया है, जिससे जो है अपना घरों के घर जो है वो खुदा की बरकतों से महरूम है। प्रेजेंस ऑफ गॉड जिंदगियों से जा रही है, प्रेजेंस ऑफ गॉड खत्म हो रही है। मैं चाहता हूँ दाऊद का खैमा खड़ा हो। हालेलुया। और आप अंदाजा ये करें कि जब वो गाते थे तो उस रेवोल्यूशन को वो लेते थे, वो डायरेक्ट कनेक्शन के अंदर आते थे। और काश हमारे चर्च के अंदर जो है बात बजाने और गाने वाले इस बातों को समझें, इन बातों को समझिए। आप गाते हैं, क्या गाते हैं, वर्शिप को कीजिए। आप किस तरफ बजाते हैं यह है बिल्कुल, आप इसको सीखिए। अगर दुनिया की तरफ तो जो देंगे कुछ नहीं हो सका। ऐ मेरी बहनों, जब आप वर्शिप करते हैं आपको मालूम हो, ठीक है, ईमान की बेटियों की तरह उसके बाप के ताबे भी थी और वो बादशाह के ताबे थी। ये तरीका अपनाइए गाने वालों, भाइयों बहनों, सारी चर्च इसको समझिए ताकि उस रेवोल्यूशन को दे सके, उस पैगाम को जो है आप रिसीव करने वाले हों। ये नबूवत करते थे, ये वर्शिप करते करते नबूवत करते थे, तो क्या होता था कि खुदावन का जलाल जाहिर होता था। आमीन। वो जो है वो मुकाशफाती अंदाज वो बयान करते थे कि हम वर्शिपर हैं। आमीन। आप सबको इस मकसद के लिए मुकर्रर करते हैं कि ये हमेशा अहद के संदूक के सामने रहा करेगा। आमीन। आप सबका मतलब क्या है? टुगेदर इकट्ठे होना, टुगेदर इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय और कंज्यूम। तो आप ये देखिए कि आसफ का मतलब इकट्ठा होना है। आमीन। Praise the Lord। इसका मतलब चिंडावल भी है, इसका मतलब चिंडावल। इसलिए तो बाइबल लिखा है कि खुदा उनका जलाल तेरा क्या होगा, चिंडावल होगा। जब दाऊद के ख्यामा में खुदा की प्रस्तुति यह आसिफ अपने बेटों के साथ करता था तो खुदा का जलाल यह उसे घेर लेता था। आमीन। उसके नाम के ऐन मुताबिक। तो गोया आप अंदाजा कीजिए कि जब आप आसफ की बात करेंगे या दाऊद के ख्यामा में अगर आसफ की बात करेंगे तो एक ऐसी कंपनी है, गैदर्ड कंपनी। आमीन। आसफ कंपनी या गैदर्ड कंपनी, ठीक है। जब गैदर्ड कंपनी जो है वो बन जाएगी तो प्रस्तिश बतौर रूहानी जंग बनकर यह दुश्मन के परखचे उड़ा देगी। Amen. We need gathered company. We need Asif and company. Amen. आसिफ और उसके बेटे ये gathered company थी। आसिफ का मतलब क्या है? To gather, इकट्ठा, ठीक है। इसलिए to destroy या to consume। Amen. लिहाजा यह घरों में कलीसियाओं के अंदर यह आसिफ हो ताकि क्या हो सके, खैमा के अंदर खुदा की प्रस्तुति हो, झांझ बजना शुरू हो, जोर से झांझ बजना शुरू हो। ये जो है आसिफ झांझों के साथ खुदा उनके हुजूर में नबूवत करता था। झांझ बने, अपने अपने झांझों का इंतजाम कीजिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि दाऊद के बाजों के साथ खुदा की प्रस्तुति जो है वो ऊंची की जाए और जो है मजबूत की जाए। आमीन। हेमान जिसका मतलब है फेथफुल, जिसका क्या मतलब है, फेथफुल। और जो हमान ये जो इसका रूट है, इसका मतलब टू बिल्ड अप, टू सपोर्ट, टू रेंडर फॉर्म और फेथफुल। आमीन। हमान
इसका जो रूट मायने जो हमान आ रहा है, हेमान जिसका मतलब फेथफुल, और फेथफुल जो हमान को इस तौर पर पेश किया जाता है, उस मजबूत जगह को पेश की जाती है जहां पर कुंठी, जहां कोई खूंटी लगाई जाए और वो हिल भी ना सके। इसलिए यशायाह 22 बाब 23 में लिखा है, और मैं उस खूंटी को मैं उसको खूंटी की मजबूत जगह में मोहकम करूंगा, और वो अपने बाप के घराने के लिए जिलाली तख्त होगा। आमीन। नबूती प्रस्तिश, प्रोफेटिक वर्शिप चर्च को मजबूत तामील करती है। हेमान ये सपोर्टर है, हेमान टू बिल्ड अप है, ये बिल्ड अप करता है, ये तामील करता है। ओह हालेलुया। प्रस्ताव दाऊद के ख्याम में जो है वो कैसे थे? फेथफुल थे, हेमान थे। आमीन। यह कलीसियाओं में, आज की कलीसियाओं के अंदर क्या होना चाहिए? हेमान होना चाहिए। आज की कलीसिया में क्या होना चाहिए? आसिफ होना चाहिए। क्या? किस लिए? ताकि गैजेट कंपनी हो, किस लिए? जब फेथफुल कंपनी हो। आज हेमान अपने बेटे और बेटियों के साथ खुदा की प्रशंसा करता था, और वो जब उसके बेटे और बेटियां जब उसके ताबे थी, और वो जब बादशाह के ताबे था। फेथफुल हो, वफादार। आमीन। तो चनाचे आप ये देखिए कि यहाँ दाऊद के ख्याम में यह प्रस्तुत करने वाले, सताइश करने वाले, वो कैसे थे? बोलिए, फेथफुल, बिल्डअप करने वाले, सपोर्ट करने वाले, फर्म, मजबूत। आमीन। जो वर्शिप करते हुए या अपने हाथों को बराबर बुलंद किए रहते हैं। आज है ये तरीकेकार को अपनी जिंदगी के लिए लीजिए। दाऊद के खैमे का रवाज ये है कि वहां पर क्या होता है? हाथों को स्ट्रेच किया जाता है, प्रस्तुत होती है, फुल ऑफ प्रेज होती है, फुल ऑफ प्रेज होती है। यदून मींस फुल ऑफ प्रेज। लिहाजा यह दाऊद के खैमे में फुल ऑफ प्रेज है, दाऊद के खैमे में फेथफुलनेस है, दाऊद के खैमे में जो है जमा होना है, दाऊद के खैमे में जमा होना, दाऊद के खैमे में जो सॉन्ग है, सो उस्ताद कनानिया मौजूद है, जिसका मतलब यहोवा जो है वो लाता है। आमीन। और उसने ऐसा शख्स मुकर्रर किया ताकि ये सिखाए, नबूवती अंदाज सिखाए, नबूवती गीत सिखाए। वो इस अंदाज को, वो सिर्फ जो है सारे गामा पादा नहीं सिखाता था, बल्कि नबूवती अंदाज सिखाता था। वो इस तौर पर इंस्ट्रक्शन देता था, वो प्रोफेसी करने के बाबत वो उनको तालीम दी जाती थी। अजीज भाइयों, खुदा के दाऊद के खामा के अंदर ये सब कुछ होता था। और हमारे कामों में क्या होना चाहिए? बोलिए। दाऊद की ख्याम में जो है वो परफेक्ट वर्शिप थी। कैसी वर्शिप थी? बोलिए, परफेक्ट वर्शिप थी। अगर अपने हाथ दोनों, अगर आपको बाइबल खड़े साइड पर करके अपने हाथ दोनों हाथों को खड़ा करें, गिदतून यहाँ पर मौजूद है, फुल ऑफ प्रेज। कोई एक आकर खुदा की प्रशंसा करे। एक मिश्रा अपने हाथों को उसकी तरफ बुलंद करें, सब अपने हाथों को उसकी तरफ बुलंद कर दोनों हाथों को उसकी तरफ बुलंद कर उसकी प्रशंसा करें। यीशु सोची नहीं करता, यीशु कुवत नहीं करता, यीशु सोची नहीं करता, यीशु कुवत नहीं करता, और दिल भी नया चाहिए, और दिल भी नया चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए। हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए। अजीज बहन भाई, जाद और नातन और दाऊद
किया था, जाल और नातन और दाऊद ने मुकर्रर किया। दूसरी तवारीख उसका 29 बाब इसकी 25वीं आयत में लिखा है कि और उसने दाऊद और बादशाह के अबीन जाल और नातन नबी के हुक्म के मुताबिक खुदावंद के घर में लावियों को झांझ और सितार और बरबल के साथ मुकर्रर किया, क्योंकि ये नबियों की मार्फत खुदावंद का हुक्म था। ये नबियों की मार्फत क्या था? खुदा का हुक्म था। आपको मैं हकीकत बताऊं, बास चर्चेस में, बास कलीसियाओं के अंदर क्या किया जाता है? वो जो है वर्शिप नहीं की जाती, सास नहीं बजते, जो है गाना बजाना नहीं होता है। ये नबियों की मार्फत खुदा उनका हुक्म है। जब भी रेस्टोरेशन हुई है, जो है आगे चल के बादशाहों के अदवार में, जैसे मैंने पिछले 2 हफ्तों में ये इसका जिक्र किया कि रेस्टोरेशन में दाऊद की वर्शिप बहाल हुई है। ये नबियों की मार्फत खुदा का हुक्म था। ये जाल और नातन और दाऊद ने इन लोगों को मुकर्रर किया था। वो क्या करे? खुदा की क्या करे? वर्शिप करे, उसकी सताइश करे, सितार बाजे झांझ, ये मैं फिर आपको भरूंगा, झांझ यह के साथ खुदा की वर्शिप को जो है वो जो है ऊंचा करने का जो है तसव्वुर या कलीसिया में दोबारा एंटर किया जा सके। है नए इलेक्ट्रिक जो है वो इंस्ट्रूमेंट आने की वजह से कई जगहों के ऊपर जो है वो झांझ जो है वो मध्यम पड़ गई है, वो खत्म हो गई है। लेट है ये दाऊद का खेमा बहाल हो। आमीन। हैरान कुन बात ये है, हैरान कुन बात ये है, ये नए अहद की परस्तिश की तस्वीर है। जो कुछ जो पुराने अहदनामा में हो रहा है, जो दाऊद के खेमे में हो रहा है, वो बड़ा हट कर है और जो है दुनिया इससे हैरान हो सकती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। जो है वो मूसा के खेमों में इसका तसव्वुर भी नहीं था कि कोई अंदर जाकर जो है इसके ऊपर वर्शिप उठा सके। किसी की हिम्मत हो, किसी के अंदर जरूरत नहीं थी, लेकिन दाऊद ने अहद के संदूक के सामने एक ट्रेंड पेश किया है और खुदा ने उसे कबूल किया है। मैं सिय्योन को चुन लिया, मैं तो यही रहूंगा, मुझे जो पसंद है, ये मेरी हमेशा के लिए आरामगाह है कि जहां पर वर्शिप और गीत स्ताइश और जो है ये परफेक्ट वर्शिप, परफेक्ट सॉन्ग्स या खुदा की हुजूर में होते हैं। जब जो है ये बाजा बजता है तो फिर वर्शिप होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो नए अहदनामे की प्रस्तुति की तस्वीर है। दाऊद ने पुराने अहदनामा में इसको जब वो पेश कर दिया है। आप मुकाशफा की किताब में जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि वो सब कुछ जो है जो ऊपर हो रहा है वो नीचे जब दाऊद के खेमे में हो रहा है, और आज है दाऊद जब जो कुछ ऊपर हो रहा है वो नीचे नहीं हो रहा है। आज से फिर दाऊद का खेमा बहाल हो। जो प्रस्तिश का तरीका सयून में जो है वो राइज हुआ या कायम हुआ है, वो आज चर्च के का तरीका बन जाना चाहिए और बन गया है। कई जगहों के ऊपर बन गया है। खुदा का शुक्र, हमारी कलीसिया के अंदर भी ये ठीक जब वर्शिप होती है, काश और जो है इसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो। आमीन। ज़बूर की वो किताब है, नए अहदनामे में जितने ज्यादा जो है ज़बूर की किताब से हवाले जात लिए हैं, कोई ऐसी ओल्ड टेस्टामेंट की किताब नहीं है जिसे हवाले लिए गए हों। सिर्फ दाऊद के ज़बूरों में से जो है वो जो है अपना बाइबल नए अहदनामे में जो है वो क्या है हवालाजात है। ये क्या बात है? तो ये परफेक्ट है। नया न्यू टेस्टामेंट हमें एक नया ट्रेंड देता है, एक नई जो है जिद्दत और नई सिमत हमें अता करता है। हमारी वर्शिप में जो है वो ट्रेडिशंस नहीं होनी चाहिए। हमारी ट्रेडिशन हमारे जो है अंदर जो है हमारे चर्चेस के अंदर जो है वो जो है सिर्फ और सिर्फ जो है रवायात या तहजीबी जो चलते चले जा रहे हैं, हटिए। दाऊद ने सब कुछ चेंज करके रख दिया और उससे सारे पैटर्न को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है और वहां पर गीत 24 घंटे जो है वो शिफ्ट होती रहती थी उसकी खेमा के अंदर। और यही कुछ उसने फिर हैकल के साथ कुछ शिफ्ट कर दिया। क्या ये आपके हैरान कुल बात नहीं है? क्या आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? ऐसा हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, ये जारी हुआ है और खुदा ने इसे क्या किया है? ये पसंद किया है। आमीन। परस्तार और मौसीकार दाऊद के खेमा में गीतों और साजों से नबूवत करते थे, प्रोफेसी करते थे, स्ताइश करते थे। जब प्रोफेसी होती थी, परस्तिश नबूवत की रूह को जारी करती है। आमीन। मैं आपको बताऊं हकीकत, अगर आप प्रोफेसी को समझना चाहते हैं तो आप क्या करना शुरू करें? वर्शिप। ठीक वर्शिप जब होना शुरू होगी तो जो है वो ये नबूवत जारी होगी। आमीन। गौर से सुनिए, वर्शिप जो है म्यूजिक
ٹھیک ہے، سنگنگ، ڈانسنگ، دعائیں، کلیسیا کی آوازیں، یہ ایسا جو ہے وہ بنتا ہے سسٹم، ایک ایسا جو ہے یہ مکسر بنتا ہے، اور جب یہ خدا کے حضور میں پہنچتا ہے، جیسے یہ جیسے بخور خدا کے حضور میں پہنچے اور اس کی راحتوں کی اس خوشبو دے اور بدلے میں اپنے لوگوں کو برکت عطا کرے. آمین. پریز دی لارڈ. میں آپ کو پھر سے بتاؤں، نبوتی پرستش، پروفیٹک پرستش جو ہے یہ تہذیبوں سے جو ہے پرے ہے، یہ ٹریڈیشن سے جو ہے وہ پرے ہے. آمین. یہ نئی سرے سے پیدا ہونے کی جو ہے اسپرٹ کو جو ہے وہ جاری کرتی ہے. آمین. ہاللیلویا. اور جب آپ جو ہے ورشپ کرتے ہیں تو آپ ایک اور نئے عالم کے اندر موو کرتے ہیں. کیا آپ ایک نئے عالم اور ایک اسپرچل عالم کا جو ہے وہ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سانگ. اور جب میں پھر سے بتا، جب سانگ گایا جائے گا آپ نے کس انداز سے کرنا ہے؟ بار. آمین. آمین. اتنی امپورٹنٹ ٹیچنگ ہے جو ہم نے جو ہے وہ بہت اس کو رد کر دیا ہے یا اس کی توجہ نہیں دی ہے. جب پروفیسی ہوتی ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے تو پولس اس میں گرنتھ میں لکھا ہے کہ جب نبوت کی جاتی ہے تو بے ایمان بھی کیا کرتا ہے؟ وہ توبہ کرتا ہے، خدا کی حضوری میں جو ہے وہ گر پڑتا ہے. لہٰذا جب ٹھیک ورشپ ہوگی یہ پروفیسی کے معنوں میں یا پروفیٹک ورشپ ہوگی تو بے ایمان بھی، غیر ایماندار شخص کے اوپر بھی اثر ہوگا اور وہ خدا کی حضور میں آئے گا اور وہ توبہ کرے گا. آمین. اور آپ جو ہے اس کا حوالہ میں اس لیے ضرور دینا چاہوں گا کہ میں نے جو ہے اکثر ہم جب بھائی انڈرسمان کے پروگرام کے اندر وہ ورشپ کرتا اور پھر وہ الٹر کال کرتا، بہت سارے لوگ خدا کو قبول انہوں نے یا ورشپ کے دوران میں کیے ہیں. یہ ہمارے ملک کے اندر ایسا ہوا ہے. لہٰذا جب آپ ٹھیک طور پر گانے والے اور بجانے والے ٹھیک ورشپ کریں گے اور کلیسیا ٹھیک طور پر خدا کے حضور میں سانگ گائے گی، گیت گائے گی اور ستائش کے گیت گائے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک نئے عالم کے اندر ہم کھڑے ہو جائیں گے اور خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر ہوگا. آخری بات غور سے سنیے، ویوین جو ہے خدا کا خادم وہ بیان کرتا ہے، عبرانی روایت ہے. اب آخری بات جو کرنے جا رہا ہوں جس کو ختم کرنا، کہ داؤد بادشاہ کے دور حکومت میں تمام پرستش کرنے والے منسٹروں کو نبوتی عالم میں پرستش کرنا سکھایا جاتا تھا. آمین. کیسا سکھایا جاتا تھا؟ نبوتی عالم میں، اسپرچل ریلم، پروفیٹک ریلم میں جو ہے وہ کیا کیا جاتا؟ پرستش کرنا سکھایا جاتا تھا. نوجوان مرد اور عورتیں اپنے باپ کے زیر سایہ جو ہے وہ ٹرین ہوتے تھے کہ وہ گائیں اور سال بجا کر جو ہے نبوت کریں. آمین. اس لیے ایمان اس کے بیٹے اور بیٹیاں، آصف اس کے بیٹے اور بیٹیاں، جدتون اس کے بیٹے کیا کرے تھے؟ ان کے تابع تھے اور خدا کی پرستش اور اس کی ستائش کرتے تھے. لہذا داؤد کے حکم سے نبوت کرنے والے خدا کی خدمت گزار، خدا کی خدمت گزار بنے ہیں.